Class 9 Mathematics. Linear equation in two variable part 1. Part 1 in sense, in this video you can find the important definition of linear equation in two variable, NCERT solution 4.1 and 4.2, and some practice question. First, some introduction definition. Algebra is a branch of mathematics deal with symbol and the rule of manipulating those symbols. In elementary algebra, those symbols, today written as Latin and Greek letters, represent quantities without fixed value known as variable. Algebra is a branch of mathematics dealing with symbol and the rule of manipulating those symbols. An equation say that two things are equal. It will have an equal sign like this: 7 plus 2 is equal to 10 minus 1. That equation say what is on the left is equal to the what is on right. So an equation is like a statement, this equal that. इक्वेशन के दो पार्ट होते हैं, LHS RHS, और बीच में इक्वल साइन होना जरूरी रहता है. An equation say that two things are equal. An expression is a statement with a minimum of two number and at least one math operation. This math operation can be addition, subtraction, multiplication and division. The structure of expression is number, math operator, number. Again एक बार फिर समझा दे रहे हैं. An expression is a statement with a minimum of two numbers and at least one mathematical operation. This mathematical operation can be addition, subtraction, multiplication and division. What is a simple algebraic expression? Algebraic equation are solved by working out what numbers the letters represent. When we turn the two simple equation above that into algebraic equation by substituting x for one of the number 2 plus 2 is equal to x. We know that 2 plus 2 is equal to 4, which means that x must equal 4. The equation answer therefore x is equal to 4. Algebraic expression में एक वेरिएबल और न्यूमेरिकल with mathematical operation, it means plus, minus, multiply, divide, इक्वल साइन के साथ होते हैं. अब इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन ऑफ चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. क्लास 9 मैथमेटिक्स क्वेश्चन नंबर 1. The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in two variable to represent this statement. हिंट दिया गया क्वेश्चन में, टेक द कास्ट ऑफ ए नोटबुक टू बी रुपीज x and that of a pen to be y. Solution: let the cost of a notebook रुपीज x जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था and the cost of a pen is equal to रुपीज y. अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहता, उसी से हम लोग लीनियर इक्वेशन बनाते हैं. कल डेफिनेशन में, कल के लेक्चर में बताया गया था. कास्ट ऑफ नोटबुक इक्वल टू 2 इंटू कास्ट ऑफ ए पेन. ट्वाइस मीन्स 2 इंटू, दैट इज x इक्वल टू 2 इंटू वाई और x इक्वल टू 2y. और जब इसको ट्रांसपोज करेंगे x माइनस 2y इक्वल टू 0. Thus, the required linear equation is x minus 2y equal to 0. ये क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन है. एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9 मैथमेटिक्स क्वेश्चन 2. एक्सप्रेस द फॉलोइंग linear equation in the form of ax plus by plus c is equal to 0 and indicate the value of a, b and c in each case. First,
2x प्लस 3y इक्वल टू 0.35 बार। ऊपर जो लाइन लगी रहती है उसको बार पढ़ते हैं। सेकेंड, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। इन सबको हमको ax प्लस by प्लस c के स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बदल करके abc की वैल्यू बतानी है। आप क्वेश्चन 2-3 पॉइंट नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 3, माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। फोर्थ, x इक्वल टू 3y। फिफ्थ पार्ट, 2x इक्वल टू माइनस 5y। सिक्स पार्ट, 3x प्लस 2y इक्वल टू 0। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.1। वी हैव 2x प्लस 5 इक्वल टू 0.35 बार। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे आरएचएस टू एलएचएस साइन चेंज हो जाएगा। तो 2x प्लस 3y प्लस ब्रैकेट माइनस 5.35 बार। वी गेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू माइनस 0.35 बार। तो इस तरह से किसी भी इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c के में चेंज करके कंपेयर कर देते हैं। सेकेंड पार्ट, वी हैव x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। इसमें कुछ ट्रांसपोज नहीं करना है। तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 5 एंड c इक्वल टू माइनस 10। थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, वी हैव माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 6। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 6 इधर आके माइनस हो जाएगा। कंपेयरिंग इट विथ ax प्लस by प्लस c से कंपेयर करेंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा फार्मूले की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे x के साथ -2 है तो a इक्वल टू -2, y के साथ 3 है तो b इक्वल टू 3 एंड c इक्वल टू -6। फोर्थ पार्ट, वी हैव x इक्वल टू 3y। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे 1x प्लस ब्रैकेट माइनस 3y इक्वल टू 0। कंपेयरिंग विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। वी गेट a इक्वल टू 1 क्योंकि x के साथ 1 का मल्टीप्लिकेशन है। y b इक्वल टू -3 और इसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है। देन c इक्वल टू 0। फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1। वी हैव 2x इक्वल टू -5। जब इसको ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। c की कोई वैल्यू नहीं दी गई है तो उसके जगह पे 0 यूज कर दिए हैं। 2x प्लस 5y प्लस 0 इक्वल टू 0। कंपेयरिंग इट विथ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। वी गेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 एंड c इक्वल टू 0। तो जो भी चीज़ x, y या c में जो भी चीज़ नहीं मिलेगा उसकी जगह पे 0 यूज कर देंगे। मतलब हमको a, b, c तीनों की वैल्यू लिखनी है, भले ही हम उसको 0 लिखें। सिक्स पार्ट, वी हैव 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में आप सब देख सकते हो कि y है ही नहीं, लेकिन उसका क्या किए हैं, 3x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। और लास्ट में कंपेयरिंग इट विथ ax प्लस by प्लस इक्वल टू 0। वी गेट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू 2। तो आपको ये समझ में आ गया होगा इस तरह के क्वेश्चन में आपको a, b, c की वैल्यू लिखनी ही है। तीनों की जो भी टर्म नहीं होगा उसकी जगह पे 0 यूज कर देंगे। अगर x का टर्म नहीं है तो a इक्वल टू 0, y का टर्म नहीं है b इक्वल टू 0, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो c इक्वल टू 0, और तीनों हैं तो साइन का विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1। वी हैव y minus 2 equal to 0. In this question, x is absent.
जो चीज़ एब्सेंट है उसकी जगह पे 0 × x यूज किया गया है। तो 0 × x प्लस 1y प्लस ब्रैकेट -2 = 0। हमको हर इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c = 0 में चेंज करके और कंपेयरिंग करना है। तो 7th पार्ट आंसर a = 0, b = 1 and c = -2। 8th part of this question, 5 = 2x implies that 5 - 2x = 0। अब जब इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ax प्लस by प्लस c = 0 में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा -2x प्लस 0 × y। अब इसमें y नहीं था तो 0 × y कर दिए प्लस 5 = 0। कंपेयरिंग इट विथ ax प्लस by प्लस c = 0, we get a = -2, b = 0, c = 5। Subscribe my YouTube channel. Thanks for watching my YouTube channel and subscribing this. Class 9 Math, Chapter 4 Linear Equation in 2 Variable, Exercise 4.2. Question number 1. Which one of the following option is true and why? Y plus 3x plus 5, y = 3x plus 5 has a unique solution, second only two solution, and third infinitely many solution। क्लास 9 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लेक्चर में कल बताया गया था कि कोई भी लीनियर इक्वेशन इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन रहता है। ऑप्शन थर्ड इज ट्रू बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x वी गेट करेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y एंड वाई वर्सा। x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो y की एक रियल वैल्यू निकलेगी, या y की वैल्यू रखेंगे तो x की रियल वैल्यू निकलेगी। इसलिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 4.2। राइट 4 सॉल्यूशन फॉर एवरी ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जैसे कि पिछले क्वेश्चन में बताया गया था कि हम x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो उसके करेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू निकलेगी। यहाँ हर स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग x या y की वैल्यू रख करके निकाल सकता है। कोई वो नहीं है कि जो एक स्टूडेंट वैल्यू रखे वही दूसरा रखे। आप अपने माइंड के अनुसार x और y की वैल्यू रखेंगे और उसका सोल्यूशन निकालेंगे। 4 सोल्यूशन निकालना है। फर्स्ट पार्ट 2x प्लस y = 7, सेकेंड पार्ट 5x प्लस y = 9 एंड थर्ड पार्ट x = 4y। सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट 2x प्लस y = 7। पहले समझ लीजिए आप लोग। वेन x = 0, हमने जैसे कहा आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो 0 से शुरू हुआ है। 2 × 0 प्लस y = 7 implies that y = 7। तो फर्स्ट सोल्यूशन निकल गया 0, 7। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी नंबर रख सकते हैं, नहीं कि हमने 0, 1 बता दिया तो आप वही रखिए। कुछ भी रखेंगे, अगर आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन सही है तो आपको नंबर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल x = 1, तो 2 × 1 प्लस y = 7 implies that y = 7 - 2 implies that y = 5। तो सेकेंड सोल्यूशन हो गया x 1, 5। इस तरह से हम 4 क्या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। बस आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड पर आपका कंट्रोल होना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए 7 - 2 5 आ रहा तो आप 9 लिख दो, तब तो नहीं नंबर मिलेगा। सेकेंड पार्ट थोड़ा सा अलग है तो इसलिए इसका सोल्यूशन दिखा दिया जा रहा है। पाई x प्लस y = 9। पाई सर्कमफ्रेंस में यूज होता है, लेकिन यहाँ उससे कोई मतलब नहीं है। वी पुट x = 0, पाई × 0 प्लस y = 9 implies that y = 9। सोल्यूशन 0, 9। अगर हम
x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, 5 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, y इक्वल टू 9 माइनस 5, आपको यहाँ उसको सॉल्व नहीं करना है। सेकेंड सोल्यूशन इज 1 कामा 9 माइनस 5। सिमिलरली यू कैन फाइंड थर्ड सोल्यूशन, फोर्थ सोल्यूशन आल्सो। You put any value of x and which value of y you find, that is solution। सोल्यूशन को हमेशा ब्रैकेट में कामा लगा के लिखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट x को डिनोट करता है, सेकेंड पार्ट y की वैल्यू को डिनोट करता है। थर्ड पार्ट x इक्वल टू 4y when x इक्वल टू 0, तो 4y इक्वल टू 1 इंटू 0, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, 1 की जगह पे आप 0 लिखेंगे, 1 की जगह पे क्या लिखेंगे, 0। तो when x इक्वल टू 0, 4y इक्वल टू 0, अंडरस्टैंड, ये मिस्टेक हो गया, 1 नहीं होगा, 0 होगा। क्वेश्चन 1 MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ ग्रेविटेशनल चैप्टर फिजिक्स क्लास 9। Question number 3. Check which of the following are solution of the equation x minus 2y equal to 4 and which are not. First 0, 2, second 2, 0, third 4, 0, fourth under root 2, 4 under root 2, फिफ्थ 1, 1। इसके सोल्यूशन में हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे और जिस ऑप्शन के लिए LHS RHS इक्वल हो जाएगा वो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स। सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट 0, 2 मीन्स x इक्वल टू 0 and y इक्वल टू 2। पुटिंग x इक्वल टू 0 and y इक्वल टू 2 in x minus 2y इक्वल टू 4 वी गेट LHS। जब हम x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह 2 रखेंगे तो LHS हो जाएगा 0 minus 2 into 2 minus 4, but here RHS is equal to 4, so LHS not equal to RHS is x is equal to 0, y is equal to 2 is not a solution। LHS और RHS 0, 2 रखने पे बराबर नहीं हुए, इसलिए इसका सलूशन नहीं है। 2, 0 means put x is equal to 2 and y is equal to 0। Putting x is equal to 2 and y is equal to 0 in x minus 2y is equal to 4, we get LHS 2 minus 2 into 0 is equal to 2 minus 0 is equal to 2। Again RHS is equal to 4, LHS not equal to RHS। इस बार भी x की जगह पे 2 और y की जगह 0 रखने पर भी LHS RHS इक्वल नहीं हुए, so 2, 0 is not a solution of this equation। थर्ड ऑप्शन है 4, 0 मीन्स x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0। पुटिंग x इक्वल टू 4 and y इक्वल टू 0 इन x minus 2y इक्वल टू 4, वी गेट LHS इक्वल टू 4 minus 2 into 0 इक्वल टू 4 minus 0 इक्वल टू 4 इक्वल टू RHS। इस बार x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0 रखने पर LHS 4 and RHS also 4, LHS इक्वल टू RHS, so 4, 0 is a solution। Part 4 under root 2, 4 under root 2 means x is equal to under root 2 and y is equal to 4 under root 2। Putting these value x is equal to under root 2 and y is equal to 4 under root 2 in equation x minus 2y is equal to 4, we get minus 2 LHS is equal to under root 2 minus 2 into 4 under root 2, सिंप्लीफाई करने पर -7 अंडर रूट 2 एंड अगेन RHS इक्वल टू 4 गिवन, सो LHS नॉट इक्वल टू RHS, सो अंडर रूट 2, 4 अंडर रूट 2 इज नॉट ए सोल्यूशन। इस क्वेश्चन में x इक्वल टू अंडर रूट 2 और y इक्वल टू 4 अंडर रूट रखने पर LHS RHS इक्वल नहीं आए,
इसलिए इसका सलूशन नहीं है। फिफ्थ पार्ट, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। पुटिंग x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 in equation x minus 2y is equal to 4, we get 1 minus 2 into 1 is equal to 1 minus 2 is equal to minus 1, but again RHS is equal to 4. Here LHS not equal to RHS, so 1 comma 1 is not a solution of this equation. Question number 4, linear equation in two variable, exercise 4.2. Question number 4, find the value of k if x is equal to 2 comma y is equal to 1 is a solution of equation 2x plus 3y is equal to k. Solution, given that we have 2x plus 3y is equal to k, putting x is equal to 2 and y is equal to 1 in equation 2x plus 3y is equal to k, we get 2 into 2 plus 3 into 1 is equal to k, implies that 4 plus 3 is equal to k, implies that k is equal to 7. Thus the required value of k is 7.